جب دنیا میں طاقت کا مطلب ظلم سمجھا جاتا تھا، جب امیری کو عزت اور غریبی کو ذلت مانا جاتا تھا، جب انصاف صرف امیروں کی جاگیر بن چکا تھا، تب ایک شخص کھڑا ہوا جس نے کہا، انسان کی اصلی قیمت اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، شیر خدا، دروازہ علم، انصاف کی زندہ مثال۔ پہلا واقعہ، جان کی بازی لگا کر ایمان بچایا۔ مکہ کی وہ رات جب کافروں نے فیصلہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ چاروں طرف تلواریں تھیں، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان دروازے پر کھڑا تھا۔ اس وقت ایک نوجوان آگے بڑھا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے جائیے، آپ کے بستر پر میں سو جاؤں گا۔ وہ نوجوان تھے علی۔ سوچئے، جس بستر پر دشمن تلوار لے کر حملہ کرنے والے ہوں، اس پر چین سے سو جانا، یہ تھا ایمان، یہ تھی قربانی۔ اور صبح جب دشمن کمرے میں گھسے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بستر پر علی ہیں۔ دوسرا واقعہ، جنگ خیبر کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ مسلمان کئی دن کوشش کرتے رہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن جھنڈا علی کو دیا گیا۔ بیمار تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو علی شیر کی طرح اٹھے، قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا۔ دشمن کانپ اٹھے اور فتح مسلمانوں کے قدم چومنے لگی۔ تیسرا واقعہ، علم کا دروازہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے تھے، غصہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، سب سے بڑی دولت عقل ہے، جس نے صبر کر لیا اس نے کامیابی پالی۔ ایک آدمی نے پوچھا، سب سے بہادر کون ہے؟ علی نے کہا، وہ جو غصے کے وقت خود کو روک لے۔ چوتھا واقعہ، انصاف کی مثال۔ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک یہودی کے ساتھ آپ کا مقدمہ عدالت میں آیا۔ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین۔ علی نے ترنت ٹوکا، مجھے میرے نام سے پکارو، عدالت میں سب برابر ہیں۔ سوچئے، آج کے دور میں کتنے لوگ اپنی کرسی چھوڑ کر برابری کی بات کرتے ہیں۔ پانچواں واقعہ، راتوں کا رونے والا شیر۔ دن میں شیر، رات میں رونے والا بندہ۔ جب سب سو جاتے تھے، علی سجدے میں گر کر روتے تھے، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو علی برباد ہو جائے گا۔ کیا تواضع تھی، کیا ڈر تھا اپنے رب کا۔ شہادت کا منظر۔ رمضان کی صبح، مسجد کوفہ میں فجر کی نماز، سجدے میں تھے علی۔ تبھی ایک بدنصیب نے زہر میں ڈوبی تلوار سے وار کیا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ موت کو بھی کامیابی کہنا، یہ صرف علی کر سکتے تھے۔ حضرت علی کی سنہری نصیحتیں۔ لوگوں کے دل جیتنا ہے تو نرمی اپناؤ۔ دنیا تمہیں تب تک نہیں جھکا سکتی جب تک تم خود نہ جھکو۔ غریب کی مدد کرو، یہی اصلی عبادت ہے۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم تمہیں اونچا اٹھاتا ہے۔ آج کے دور کے لیے پیغام، اگر ہمارے گھروں میں علی جیسا صبر ہو، ہماری عدالتوں میں علی جیسا انصاف ہو، ہمارے دلوں میں علی جیسا ڈر خدا ہو، تو کیا ہماری دنیا بدل نہیں جائے گی؟ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر علی جیسا کردار آئے تو آج سے 3 چیزیں شروع کر دیجیے۔ سچ بولنا، غصے پر قابو رکھنا، غریبوں کی مدد کرنا، اور یاد رکھیے، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار زندہ رہتا ہے۔ مکہ کی وہ سیاہ رات، آسمان خاموش تھا، ریگستان کی ہوائیں جیسے کسی بڑے امتحان کی گواہی دے رہی تھیں۔ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا، آج اسلام کی آواز کو خاموش کر دیا جائے گا۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان چنا گیا تاکہ سب مل کر ایک ساتھ وار کریں اور خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ مقصد صاف تھا، نعوذ باللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کا پلان سب سے بڑا ہے، اور اس رات ایک ایسا نوجوان کھڑا ہوگا جو اتہاس بدل دے گا۔ سازش کی خبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ نے اپنے سب سے بھروسے مند ساتھی کو چنا، وہ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔
सोचिए, जिस बिस्तर को घेर कर दुश्मन तलवार लिए खड़े हों, जिस दरवाजे के बाहर मौत इंतजार कर रही हो, उस बिस्तर पर सोना क्या ये मामूली बात थी? अली का जवाब। इतिहास गवाह है, हजरत अली ने एक पल भी देर नहीं की। न कोई डर, न कोई सवाल, सिर्फ एक जुमला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके बिस्तर पर सो जाऊं तो क्या आपकी जान बच जाएगी? जब जवाब मिला हाँ, तो अली मुस्कुरा दिए। बस इतना ही काफ़ी था। उनके लिए अपनी जान की कोई कीमत नहीं थी अगर उससे इस्लाम और रसूल की हिफाजत हो जाए। वो ऐतिहासिक रात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल पड़े और अली उसी बिस्तर पर लेट गए। बाहर दुश्मन तलवारें तेज कर रहे थे, कुछ लोग दरवाजे की दरार से झांक रहे थे। उन्हें यकीन था कि सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर अली चैन की नींद सो रहे थे। ये कैसी नींद थी? ये उस शख्स की नींद थी जिसका ईमान पहाड़ से मजबूत हो। सुबह का मंजर, जैसे ही सुबह हुई, कुरैश के नौजवान कमरे में घुसे, तलवारें उठीं और अचानक बिस्तर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि अली उठ खड़े हुए। सब हैरान, सब गुस्से में। उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहाँ हैं? अली ने पूरे सुकून से जवाब दिया, मुझे क्या मालूम। वो जानते थे अब खतरा उनके ऊपर है, लेकिन चेहरे पर खौफ नहीं था। ईमान का असली मतलब। इस वाक़े ने दुनिया को सिखाया, ईमान सिर्फ कलिमा पढ़ने का नाम नहीं। ईमान उस वक्त साबित होता है जब तलवार गर्दन पर हो और इंसान फिर भी सच का साथ न छोड़े। अली ने साबित किया कि सच्चा मोमिन वो है जो अपनी नबी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दे। भरोसा किस पर? उस रात 3 चीज़ें थीं, दुश्मनों की साजिश, मौत का डर और अल्लाह पर यकीन। और अली ने तीसरी चीज़ को चुना। उन्हें यकीन था अगर मेरी मौत भी लिखी है तो वो भी अल्लाह की मर्जी से होगी। कुर्बानी का इनाम। इस वाक़े के बाद हज़रत अली का मकाम और बुलंद हो गया। उलेमा लिखते हैं कि उस रात अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने अली की कुर्बानी पर फ़ख्र फरमाया। ये थी वो शख्सियत जो दिन में शेर और रात में सजदों में रोने वाला बंदा था। हमारे लिए सबक। आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन क्या हम सच के लिए खड़े हो सकते हैं? अगर नौकरी चली जाए तो? अगर लोग बुरा मान जाएं तो? अगर फ़ायदा कम हो जाए तो? अली ने तो जान दे दी और हम छोटी छोटी बातों पर समझौता कर लेते हैं। आज का सवाल, सोचिए अगर उस रात अली डर जाते, अगर कहते मुझे अपनी जान प्यारी है, तो क्या होता? शायद इस्लाम की कहानी अलग होती, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि जब एक सच्चा बंदा खड़ा हो जाता है तो अल्लाह पूरी दुनिया की साजिशें नाकाम कर देता है। दिल को छू लेने वाला क्लाइमैक्स। उस रात अली ने सिर्फ एक बिस्तर पर नहीं सोया था, उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की नींव रखी थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया मोहब्बत क्या होती है, वफादारी क्या होती है, कुर्बानी क्या होती है और ईमान क्या होता है। एंडिंग नरेशन। ऐ लोगो, अगर तुम अली से मोहब्बत करते हो तो उनकी सीरत अपनाओ, सच के लिए खड़े हो जाओ, डर को दिल से निकाल दो और याद रखो जिसका सहारा अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मक्का की हवा उस रात कुछ अलग थी। रेत के कण जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी बयान कर रहे थे। गली कूचों में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में साजिश की आग भड़क रही थी। इस्लाम की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद हो रही थी। कमज़ोर लोग मजबूत हो रहे थे, गुलाम आज़ाद सोचने लगे थे और सबसे बढ़कर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे थे। ये बात मक्का के सरदारों को नागवार गुजर रही थी। मक्का के बड़े बड़े सरदार एक जगह जमा हुए, दारुन नदवा में, मशवरे की जगह में। हर चेहरे पर गुस्सा था, हर जुबान पर एक ही सवाल, इस नई दावत को कैसे रोका जाए? किसी ने कहा उन्हें कैद कर दो, दूसरे ने कहा उन्हें मक्का से निकाल दो। लेकिन एक चालाक सुझाव आया, हर कबीले का एक एक नौजवान चुनो, सब मिलकर एक साथ हमला करें, खून सब में बढ़ जाएगा और बनी हाशिम बदला नहीं ले पाएंगे। ये शैतानी प्लान सबको पसंद आया और फैसला हो गया। अल्लाह की तरफ से खबर। लेकिन वो भूल गए थे कि आसमानों का मालिक सब देख रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस साजिश की खबर दे दी। जब ये खबर पहुंची तो ये सिर्फ जान बचाने का मामला नहीं था, ये इस्लाम की हिफाजत का मामला था। भरोसे का इम्तिहान। अब सवाल था कौन साथ देगा, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। वहीं खड़े थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अभी जवान थे, जिंदगी सामने थी, ख्वाब सामने थे। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साजिश का जिक्र किया तो अली के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। वो लम्हा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे हिजरत करनी है, लेकिन दुश्मन मेरे घर को घेरे हुए हैं। अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क्या करना है?
जब बताया गया कि तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ तो अली ने सिर्फ इतना पूछा, क्या इससे आपकी जान बच जाएगी? जवाब मिला, हाँ। बस फैसला हो गया। रात का मंजर, बाहर तलवारें चमक रही थीं, हर कबीले का नौजवान तैयार था, कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अंदर एक जवान मुस्कुराकर बिस्तर पर लेट गया। क्यों? क्योंकि उसे साजिश की खबर थी। उसे पता था सुबह हमला होगा, लेकिन उसे ये भी पता था अल्लाह सबसे बड़ा है। साजिश बनाम तदबीर इलाही। कुरैश सोच रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, लेकिन वो भूल गए थे कि अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। उनकी साजिश जमीन पर थी, अल्लाह की हिफाजत आसमान से थी। अगर हम होते, जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आज रात आपके घर पर हमला होगा और आप ही को निशाना बनाया जाएगा, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? लेकिन अली सोए, क्योंकि उन्हें अपने रब पर भरोसा था। सबक, इस साजिश की खबर ने 3 बातें सिखाईं। जब सच फैलता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को पहले ही रास्ता दिखा देता है। सच्चा साथी वही है जो खतरे में साथ दे। सुबह की हकीकत, जब सुबह हुई और दुश्मन कमरे में घुसे तो उन्हें झटका लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके थे और बिस्तर पर अली थे। साजिश नाकाम हो चुकी थी, अल्लाह का प्लान कामयाब हो गया। दिल को छू लेने वाला पैगाम, उस रात सिर्फ एक साजिश नाकाम नहीं हुई थी, बल्कि ये साबित हो गया था अल्लाह अपने नबी की हिफाजत खुद करता है, और अली जैसे लोग इतिहास में इसलिए पैदा होते हैं ताकि कुर्बानी की मिसाल कायम हो सके। ऐ सुनने वालों, जब तुम्हारे खिलाफ साजिश हो, जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, जब रास्ते बंद होते नजर आएं, तो घबराना मत। याद रखना, अगर तुम्हारा साथ सच और अल्लाह के साथ है तो कोई साजिश नाकाम नहीं हो सकती। वो लोग कौन थे? क्या वो अनपढ़ थे? क्या वो कमजोर थे? क्या उन्हें सच दिखाई नहीं देता था? नहीं, वो मक्का के सबसे ताकतवर लोग थे, सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली। लेकिन एक चीज की कमी थी, दिल में सच्चाई की जगह घमंड था। मक्का के सरदार, वो लोग कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे। काबा की देखभाल उन्हीं के हाथ में थी, व्यापार उन्हीं के पास था, इज्जत उन्हीं के पास थी। लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब इंसान बराबर हैं, तो ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर सब बराबर हो गए तो उनका घमंड टूट जाता। डर किस बात का था? उन्हें डर था अगर लोग एक अल्लाह को मान लेंगे तो मूर्तियों का कारोबार खत्म हो जाएगा। अगर लोग सच अपनाएंगे तो उनकी झूठी शान गिर जाएगी। अगर गुलाम आजाद सोचने लगेंगे तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया, सच को खत्म कर दो। जलन और घमंड, वो कहते थे अगर नबूवत आनी थी तो हमारे खानदान में क्यों नहीं आई? ये सवाल नहीं था, ये घमंड था। सच को स्वीकार करने के लिए दिल में झुकाव चाहिए, और उनके दिल पत्थर हो चुके थे। साजिश का प्लान, वो इकट्ठा हुए, रात को मशवरा हुआ। किसी ने कहा उन्हें जेल में डाल दो, दूसरे ने कहा उन्हें शहर से निकाल दो। लेकिन आखिर ने एक खतरनाक राय आई, सब मिलकर एक साथ हमला करें ताकि खून का बदला किसी एक से ना लिया जा सके। ये थी उनकी सोच, ये था उनका इंसाफ। लेकिन वो भूल गए थे कि अल्लाह सब सुन रहा है। वो सोच रहे थे कि उनकी ताकत सबसे बड़ी है, लेकिन ताकत का असली मालिक कौन है? अल्लाह। सच से नफरत क्यों? सच उन्हें इसलिए बुरा लगता था क्योंकि वो गरीबों को इज्जत देता था, वो औरतों को हक देता था, वो गुलामों को आज़ादी देता था, वो अमीरों को झुकना सिखाता था, और ये सब उनकी व्यवस्था के खिलाफ था। इतिहास की सच्चाई, हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं, जब भी कोई नबी आया, जब भी कोई सुधार की आवाज़ उठी, तो सबसे पहले विरोध उन्हीं ने किया जिनके फायदे खतरे में थे। सच को कभी कमज़ोर लोग नहीं रोकते, सच से हमेशा ताकतवर डरते हैं। हमारे लिए सबक, आज भी दुनिया में वो लोग मौजूद हैं जो सच बोलने वाले को चुप कराना चाहते हैं, जो इंसाफ की आवाज़ से डरते हैं, जो अपने फायदे के लिए झूठ फैलाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हर साजिश अस्थायी होती है और सच हमेशा कायम रहता है। दिल को छू लेने वाला क्लाइमैक्स, वो लोग सोच रहे थे कि एक रात में सब खत्म कर देंगे, लेकिन उसी रात इस्लाम की हिजरत शुरू हुई, और वही हिजरत एक नई शुरुआत बन गई। आज उनका नाम इतिहास में सिर्फ साजिश करने वालों के रूप में है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली का नाम रहमत और कुर्बानी के रूप में। ऐ सुनने वाले, अगर कभी तुम्हारे खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, अगर सच्चाई की वजह से तुम अकेले पड़ जाओ, तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। सच का साथ देने वाला हमेशा अल्लाह के साथ होता है।
जब रात की चादर धीरे धीरे सिमटती है, जब अंधेरे की हुकूमत खत्म होने लगती है, जब आसमान काले से नीले और फिर सुनहरे रंग में बदलता है, तब एक मंजर सामने आता है जो इंसान के दिल को हिला देता है। वो है सूरज का उगना। कभी सोचा है ये रोज कैसे होता है? कौन है जो इसे वक्त पर उठाता है? कौन है जो इसे डूबने का हुक्म देता है? सुबह की पहली किरण, फज्र का वक्त होता है। हवा ठंडी होती है, हर चीज खामोश होती है। अचानक पूरब की तरफ हल्की सी रोशनी फैलती है, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। पहली किरण जब धरती को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे रहमत बरस रही हो। पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ झूमने लगते हैं, धरती जागने लगती है। सूरज की ताकत। सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो जिंदगी देता है। फसलें उगती हैं, दरिया चमकते हैं, हवाएं गर्म होती हैं, मौसम बदलते हैं। अगर सूरज कुछ दिन न निकले तो दुनिया जम जाए, अगर बहुत करीब आ जाए तो सब जल जाए। कितना संतुलन है, कितनी हिकमत है। सूरज डूबने का मंजर। जब दिन ढलता है और सूरज धीरे धीरे लाल होने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान आग से रंग गया हो। सुनहरा रंग, नारंगी लकीरें, लाल बादल। हर शाम एक नई पेंटिंग बनती है। कोई भी शाम दूसरे जैसी नहीं होती। और फिर धीरे धीरे सूरज क्षितिज के पीछे छुप जाता है, जैसे कह रहा हो मैं फिर आऊंगा। सूरज हमें क्या सिखाता है? सूरज हर दिन निकलता है, चाहे लोग सो रहे हों, चाहे कोई उसका शुक्रिया ना अदा करे, वो अपना फर्ज निभाता है। ये हमें सिखाता है अपना फर्ज निभाओ, चाहे लोग सराहें या नहीं, चाहे लोग समझें या नहीं। अंधेरे के बाद उजाला। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। ये अल्लाह की निशानी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत, सूरज फिर निकलेगा। सूरज की गर्मी और रहमत। कभी गर्मी लगती है तो हम शिकायत करते हैं, लेकिन सोचिए अगर गर्मी ना हो, फसलें नहीं पकेंगी, बीज नहीं उगेंगे, मौसम नहीं बदलेंगे। जिसे हम तकलीफ समझते हैं वो भी रहमत होती है। पानी पर सूरज की परछाई। जब सूरज दरिया पर पड़ता है तो पानी सोने जैसा चमकता है। जब पहाड़ों पर पड़ता है तो बर्फ हीरे जैसी लगती है। जब रेगिस्तान पर पड़ता है तो रेत आग की तरह चमकती है। हर जगह अलग मंजर, हर जगह अलग खूबसूरती। इंसान के लिए पैगाम। सूरज कहता है गिरो तो फिर उठो, डूबो तो फिर निकलो। अंधेरे में भी उम्मीद रखो, क्योंकि मैं भी डूबता हूँ लेकिन खत्म नहीं होता। सोचने वाली बात। क्या कभी सूरज देर से निकला? क्या उसने कभी कहा आज मेरा मन नहीं है? नहीं, वो अपने रब के हुक्म का पाबंद है। और इंसान जिसे अक्ल दी गई, दिल दिया गया, वो कितनी बार अपने फर्ज से भागता है। दिल को छू लेने वाला क्लाइमैक्स। जब आप अगली बार सूरज को उगते देखें तो सिर्फ फोटो मत लें, एक पल रुककर सोचें कितनी ताकत है इसमें, लेकिन कितनी आज्ञाकारिता भी है। कितनी रोशनी है लेकिन कितनी विनम्रता भी है। इमोशनल एंडिंग। ए इंसान, अगर सूरज अपने रब के हुक्म से बंधा है तो तू क्यों नहीं? अगर वो हर दिन नई शुरुआत कर सकता है तो तू क्यों नहीं? अगर वो अंधेरे को मिटा सकता है तो तू अपने गुनाहों के अंधेरे को क्यों नहीं मिटा सकता? आखिरी पैगाम। सूरज सिर्फ एक सितारा नहीं, एक निशानी है। निशानी इस बात की कि अल्लाह की कुदरत असीम है, उसकी व्यवस्था परफेक्ट है और उसकी रहमत हर सुबह नहीं होती है। इस्लाम की आवाज दिन ब दिन बुलंद हो रही थी। गुलाम आजाद सोचने लगे थे, गरीबों को इज्जत मिलने लगी थी और अमीरों का घमंड टूटने लगा था। यही बात मक्का के सरदारों को नागवार गुजरी। उन्होंने तय कर लिया, अब कुछ बड़ा करना होगा। दारुन नदवा में गुप्त बैठक। मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हुए। जगह थी दारुन नदवा। हर चेहरा गंभीर था, हर आवाज में गुस्सा था। एक ने कहा उन्हें कैद कर दो, दूसरे ने कहा उन्हें शहर से निकाल दो, लेकिन तीसरी राय सबसे खतरनाक थी। नहीं, ऐसा करो कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज आई, हर कबीले से एक एक नौजवान चुनो, सब मिलकर एक साथ हमला करें। एक साथ वार होगा और खून सब पर बट जाएगा। बनी हाशिम बदला नहीं लेगा। यही था साजिश का प्लान। क्यों बनाया गया ऐसा प्लान? उन्हें डर था कि अगर ये दावत फैल गई तो उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। अगर लोग एक अल्लाह को मानने लगे तो मूर्तियों का कारोबार बंद हो जाएगा। अगर अमीर और गरीब बराबर हो गए तो उनका रुतबा गिर जाएगा। ये सिर्फ एक इंसान के खिलाफ प्लान नहीं था, ये सच के खिलाफ जंग थी, घमंड की आग।
उनका असली डर क्या था? सच, क्योंकि सच इंसान को झुकना सिखाता है और घमंडी लोग झुकना नहीं जानते। वे कहते थे, अगर नबूवत आनी थी तो हमारे घराने में क्यों नहीं आई? ये सवाल नहीं, रात का अंतिम फैसला। बैठक खत्म हुई। हर कबीले से एक एक ताकतवर जवान चुना गया। तलवारें तेज की गईं। योजना तय हुई। समय तय हुआ। फैसला था फज्र से पहले हमला होगा। सब ने सोचा अब काम खत्म, लेकिन वो भूल गए कि अल्लाह सब सुन रहा है। आसमान की खबर जब जमीन पर। जब साजिश तैयार हो चुकी थी तो आसमान से हिफाजत का इंतजाम हो चुका था। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दी। अब प्लान के मुकाबले प्लान था, लेकिन फर्क ये था, एक इंसानों का था और दूसरा रब्बुल आलमीन का। भरोसे की मिसाल। जब साजिश की खबर दी गई तो सवाल था कौन मदद करेगा। वहीं खड़े थे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जवान थे, जिंदगी सामने थी, लेकिन जब कहा गया आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ तो उन्होंने बिना झिझक हामी भर दी। उन्हें पता था साजिश क्या है, उन्हें पता था खतरा क्या है, लेकिन उन्हें ये भी पता था अल्लाह सबसे बड़ा है। साजिश बनाम तदबीर इलाही। कुरैश सोच रहे थे कि उनकी योजना परफेक्ट है, लेकिन कुरान कहता है वे चाल चलते हैं और अल्लाह भी चाल चलता है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। उनकी तलवारें जमीन पर थीं, अल्लाह की हिफाजत आसमान से थी। सुबह का झटका। जब सुबह हुई और साजिश करने वाले घर में घुसे तो बिस्तर पर वो नहीं थे जिन्हें मारने आए थे। उनकी पूरी योजना धरी की धरी रह गई। गुस्सा बढ़ा, शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हिजरत शुरू हो चुकी थी। इस्लाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। हमारे लिए सबक। इस साजिश के प्लान से हमें क्या सीख मिलती है? जब सच उठता है तो झूठ घबराता है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह की योजना सबसे बड़ी होती है। सच्चे लोग खतरे में भी पीछे नहीं हटते। आज के दौर में आज भी साजिशें होती हैं, सच को दबाने की कोशिश होती है, अच्छे लोगों को बदनाम किया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है हर साजिश अस्थायी है और सच हमेशा कायम रहता है। क्लाइमैक्स नरेशन। सोचो अगर वो प्लान कामयाब हो जाता तो क्या होता, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। साजिशें बनती हैं, लेकिन फैसले आसमान से होते हैं। आखिरी पैगाम। ऐ सुनने वाले, अगर तुम अली से मोहब्बत करते हो तो उनकी तरह भरोसा करना सीखो। अगर सच के लिए खड़े होना पड़े तो पीछे मत हटो। अगर खतरा आए तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि जिस रात अली ने मौत को गले लगाया उसी रात अल्लाह ने इस्लाम को नई जिंदगी दी थी। रात साधारण नहीं थी, वो सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो इस्लामी इतिहास का मोड़ थी। मक्का की गलियां खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के पीछे तलवारों की आहट थी। रेगिस्तान की हवा ठंडी थी, लेकिन दिलों में नफरत की आग जल रही थी। कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया था आज रात सब खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये रात खत्म होने के बजाय एक नई सुबह की शुरुआत बनेगी। साजिश का घेरा। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हर कबीले से एक एक जवान तलवार लेकर खड़ा था। योजना साफ थी, फज्र से पहले हमला होगा, एक साथ वार किया जाएगा और मामला हमेशा के लिए खत्म। बाहर मौत इंतजार कर रही थी, अंदर भरोसा जाग रहा था। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। अब जाना जरूरी था, लेकिन दुश्मनों को धोखा देना भी जरूरी था। तभी एक फैसला हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भरोसे की मिसाल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया। आवाज में प्यार था, लेकिन हालात में खतरा। फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ। सोचिए, जिस बिस्तर को दुश्मन घेरे हो, जहां हर तलवार उसी तरफ उछनी हो, वहां सो जाना ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये यकीन था। अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे आपकी जान बच जाएगी? जब जवाब मिला हाँ, तो अली के चेहरे पर सुकून आ गया। बस इतना जानना काफी था। वो लम्हा। रात गहराती गई, आसमान पर सितारे गवाह थे। अंदर अली बिस्तर पर लेट गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिफाजत में निकल पड़े। बाहर पहरा सख्त था, कुछ लोग झांक झांक कर देख रहे थे,
उन्हें लगा शिकार जाल में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जाल खुद टूटने वाला है। मौत के साए में नींद। कैसी होगी वो नींद? क्या दिल तेज नहीं धड़क रहा होगा? क्या ख्याल नहीं आ रहा होगा कि सुबह तलवारें उठेंगी? लेकिन अली का दिल मजबूत था। उनका भरोसा अल्लाह पर था। ये उस शख्स की नींद थी जिसने खुद को अपने रब के हवाले कर दिया था। आसमान की निगरानी। रिवायतों में आता है कि उस रात फरिश्ते भी हैरान थे। एक इंसान, इतनी कम उम्र और इतना बड़ा भरोसा। अल्लाह ने फरमाया, देखो ये है मेरा बंदा जो अपनी जान की परवाह नहीं करता अगर मेरे नबी की हिफाजत हो जाए। सुबह का पल। सुबह का उजाला फैलने लगा। साजिश करने वालों ने इशारा किया, अब वक्त आ गया। दरवाजा तोड़ा गया, तलवारें उठी और अचानक बिस्तर से एक चेहरा उठा। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, वो अली थे। सन्नाटा छा गया। उनकी पूरी योजना ढल चुकी थी। सामना। उन्होंने गुस्से में पूछा, वो कहाँ है? अली ने सुकून से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। चेहरे पर डर नहीं था, आंखों में घबराहट नहीं थी। वो जानते थे अब खतरा उन पर है, लेकिन ईमान वाले डरते नहीं, वो भरोसा करते हैं। इस रात से सीख। इस ऐतिहासिक रात ने हमें 3 बड़ी बातें सिखाई। जब अल्लाह साथ हो तो साजिशें नाकाम होती हैं। सच्चा मोमिन खतरे में भी पीछे नहीं हटता। कुर्बानी के बिना कामयाबी नहीं मिलती। हिजरत की शुरुआत। उस रात सिर्फ एक बिस्तर पर सोना नहीं हुआ था, उस रात हिजरत की शुरुआत हुई थी। और वही हिजरत इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत बनी। वो रात इस्लामी इतिहास का मोड़ थी, जहां डर हार गया और यकीन जीत गया। अगर अली डर जाते, जरा सोचिए, अगर उस रात अली कहते मुझे अपनी जान प्यारी है, तो क्या होता? लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि मोहब्बत क्या होती है, वफादारी क्या होती है और ईमान क्या होता है। दिल को छू लेने वाला क्लाइमैक्स। उस रात अली ने सिर्फ बिस्तर नहीं संभाला था, उन्होंने इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने दुनिया को सिखाया, सच्चा प्यार कुर्बानी मांगता है, सच्चा ईमान डर से ऊपर होता है और सच्चा बंदा अपने रब पर भरोसा करता है। इमोशनल एंडिंग। ऐ सुनने वाले, अगर तुम अली से मोहब्बत करते हो तो उनकी तरह भरोसा करना सीखो। अगर सच के लिए खड़े होना पड़े तो पीछे मत हटो। अगर खतरा आए तो अल्लाह को याद करो, क्योंकि जिस रात अली ने मौत को गले लगाया, उसी रात अल्लाह ने इस्लाम को नई जिंदगी दी थी।